जय हिंद। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हायर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर व्हाई यूजिंग लोअर ऑर्डर मल्टीप्लेक्सर। You have given 4 cross 1 multiplexer. You have to implement this 4 cross 1 multiplexer with the help of 2 cross 1 multiplexer. How many 2 cross 1 multiplexer are required? You have to divide this 4 by 2. When you divide, you will get quotient 2. Again, you have to divide this 2 by 2. You will get quotient 1. जैसे ही आपको 1 मिलेगा, आपने स्टेप रोक देना है. तो simply how many 2 cross 1 multiplexer are required? 2 plus 1, 3. You have to design 8 cross 1 multiplexer with the help of 2 cross 1 multiplexer. How many 2 cross 1 multiplexer are required? You have to divide this 8 by 2. Quotient is 4. Again, you have to divide this 4 by 2. Quotient is 2. Now you have divide this 2 by 2. Quotient is 1. जैसे ही 1 मिलेगा आपको स्टेप रोक देना है. तो how many 2 cross 1 multiplexer are required? 4 plus 2 plus 1. Answer is 7. आपको 16 into 1 multiplexer डिजाइन करना है with the help of 2 cross 1 multiplexer. How many 2 cross 1 multiplexer are required? You have to divide this 16 by 2. Quotient is 8. Again, you have to divide this 8 by 2. Quotient is 4. You have to divide this 4 by 2. Quotient is 2. Again, you have to divide this 2 by 1. Quotient is 1. जैसे ही आपको 1 मिलेगा, आपने प्रोसेस रोक देना है. तो how many 2 cross 1 multiplexer are required? 8 plus 4 plus 2 plus 1. तो आंसर इज 15. आपको 16 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है विद द हेल्प ऑफ 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर. हाउ मेनी 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर? आपको 64 को डिवाइड करना है 2 से. क्वोशिएंट इज 32. अगेन यू हैव टू डिवाइड दिस 32 by 2. क्वोशिएंट इज 16. अगेन यू हैव टू डिवाइड दिस 16 by 2. Quotient is 8. You have to divide this 8 by 2. Quotient is 4. Again 4 by 2. Quotient is 2. Again 2 by 2. Quotient is 1. जैसे ही 1 मिलेगा आपको प्रोसेस रोकना है. तो कितने 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए? 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. आंसर इज 63. आपको 16 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर बनाना है विद द हेल्प ऑफ 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर. हाउ मेनी 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड? अगेन यू हैव टू डिवाइड दिस 16 by 4. क्वोशिएंट इज 4. अगेन यू हैव टू डिवाइड दिस 4 by 4. क्वोशिएंट इज 1. जैसे ही 1 मिलेगा आपको स्टेप रोक देना है. आंसर 4 plus 1 5. तो with the help of 4 cross 1 multiplexer, we can design 16 cross 1 multiplexer. You have to design 64 cross 1 multiplexer with the help of 8 cross 1 multiplexer. How many 8 cross 1 multiplexer are required? You have to divide this 64 by 8. Quotient is 8. Again you have to divide this 8 by 8. क्वोशिएंट इज 1. जैसे ही 1 आएगा आपको स्टेप रोक देना है. आंसर 8 plus 1 9. तो सिंपली विद द हेल्प ऑफ 9 8 cross 1 multiplexer we can design 64 cross 1 multiplexer. क्लास अब आपको 4 cross 1 multiplexer बनाना है with the help of 2 cross 1 multiplexer. 4 cross 1 multiplexer क्या होता है? In the case of 4 cross 1 multiplexer,
there are four inputs I0, I1, I2 and I3 and there is a single output. How many select line are required? हमें already पता है m equal to 2 to power n where m is number of inputs. How many number of inputs? 4. तो यहां पर मैंने 4 लिखा equal to 2 to power n. This 4 can be written as 2 to power 2 equal to 2 to power n. बेस सेम है, जब आप पावर को कंपेयर करोगे तो n equal to 2. तो सिंपली हाउ मेनी सिलेक्ट लाइन आर रिक्वायर्ड? 2, S1 and S0. This is a truth table. There are two select lines S1 and S0. How many possible combinations? 4, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. For 0, 0 combination, आउटपुट में मुझे I0 इनपुट मिलेगी, तो सिंपली आउटपुट में हमें I0 इनपुट मिली. अगेन जैसे ही हमने S1 और S0 में 0-1 कॉम्बिनेशन अप्लाई किया, उस केस में आउटपुट में हमें I1 इनपुट मिलेगी, तो आउटपुट में हमें I1 इनपुट मिली. अगेन फॉर 1-0 कॉम्बिनेशन आउटपुट में हमें I2 इनपुट मिलेगी एंड फॉर 1-1 कॉम्बिनेशन आउटपुट में हमें I3 इनपुट मिलेगी. This is a 2 cross 1 multiplexer. In this case, there are two inputs, I0 and I1. How many select line are required? We already know m equal to 2 to power n. यहाँ पर m है number of inputs. How many number of inputs? 2 equal to 2 to power n. बेस सेम है, जब आप पावर को कंपेयर करोगे तो n इक्वल टू 1, तो सिंपली वन सेलेक्ट लाइन इज रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर. दिस इज ए ट्रुथ टेबल. देयर इज ए वन सेलेक्ट लाइन S0. हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन? 0 and 1. जैसे ही आप S में 0 अप्लाई करोगे, ये जो इनपुट है मुझे आउटपुट में मिलेगी, तो Y में मुझे अपर वाली इनपुट मिली. और जैसे ही सिलेक्ट लाइन में हम 1 अप्लाई करेंगे तो लोअर वाली इनपुट हमें आउटपुट में मिलेगी, तो आउटपुट में हमें I1 इनपुट मिलेगी. अब हमको ये 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर. तो पहला स्टेप, हाउ मेनी 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर्ड? यू ऑलरेडी नो. इस 4 को हमें 2 से डिवाइड करना है, क्वोशंट आएगा 2. अब इस 2 को अगेन हमें 2 से डिवाइड करना है, क्वोशंट आएगा 1. जैसे ही 1 आएगा स्टेप रोक देना है, तो सिंपली कितने 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए? 3. अब 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर को अगर हमने 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर से डिजाइन करना है तो सिंपली 3 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए. इस केस में जो हम अप्रोच रखेंगे वो हम रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. जैसे यहां पर 2 आया आंसर, तो मैंने यहां पर 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर पैरेलल में लगाए हैं. आगे फिर आंसर आया 1, तो यहां पर मैंने 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर लगाया है. तो सिंपली 3 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर चाहिए अगर हमें 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन करना है. अब क्लास, इन द केस ऑफ 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर, हाउ मेनी सिलेक्ट लाइन आर रिक्वायर? 1. तो सेम, देयर इज वन सेलेक्ट लाइन, देयर इज वन सेलेक्ट लाइन, देयर इज वन सेलेक्ट लाइन. अब ये सेलेक्ट लाइन कैसे लिखना है? क्लास, जब आप 4 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर को देखोगे तो यहां पर पहले S1 है, फिर यहां पर S0 है. अब यहां पर हमने ऑर्डर चेंज कर देना है. इस केस में क्या होगा, जैसे यहां पर S0 आया था, फिर S1 आया था, इस सर्किट में क्या होगा, पहले आएगा S1. इस मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट लाइन होगी S1, फिर आएगा S0, तो इस मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट लाइन होगी S0. सेम, ये दोनों पैरेलल में है, इस मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट लाइन भी होगी S0. यहां पर S1 S0, तो यहां पर कैसे लिखेंगे? S0 S1. अब यहां पर इनपुट्स लिखनी है. अब हम 4 क्रॉस 1 को डिजाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 क्रॉस 1 मल्टीप्लेक्सर. तो 4 क्रॉस 1 की इनपुट्स हैं 4, I0 I1 I2 I3. तो सिंपली 2 क्रॉस 1 की जो दो इनपुट्स होंगी वो होंगी I0 I1, और जो नेक्स्ट इनपुट्स होंगी 2 क्रॉस 1 की वो होंगी I2 एंड I3.
क्लास हमने 4x1 मल्टीप्लेक्सर को डिजाइन किया है विद द हेल्प ऑफ 3 2x1 मल्टीप्लेक्सर से। तो सिंपली जो 4x1 का ट्रुथ टेबल होगा, ये जो सर्किट है उस ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करेगा। अब हम करते हैं, जैसे 4x1 में क्या था, S1 0 S0 0, आउटपुट में मुझे मिला I0। अब इसको हम यहां पर वेरीफाई करेंगे। सिलेक्ट लाइन S1 की वैल्यू 0 और S0 की वैल्यू 0, अगेन यहां पर 0। अब क्लास जैसे ही सिलेक्ट लाइन 0 है, तो हमें पता है इन द केस ऑफ 2x1 मल्टीप्लेक्सर आउटपुट में हमें अपर वाली इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, I0 इनपुट। अगेन यहां पर सिलेक्ट लाइन 0 है, तो आउटपुट में हमें अपर वाली इनपुट मिलेगी, डेट इज I2। अब नेक्स्ट यहां पर 2x1 मल्टीप्लेक्सर है, सिलेक्ट लाइन अगेन यहां पर 0, तो आउटपुट में यहां पर मिलेगी अपर वाली इनपुट। अपर वाली इनपुट है I0। तो सिंपली Y में हमें क्या मिलेगा, I0। और इस केस में भी क्या हुआ था, 0 0 में हमें आउटपुट में मिला I0, और इस सर्किट में भी हमें क्या मिला, 0 0 पे आउटपुट में हमें मिला I0। सेम अब मैं नेक्स्ट केस डिस्कस करूंगा। 4x1 में जैसे ही हमने सेलेक्ट लाइन में 0 1 कॉम्बिनेशन अप्लाई किया, आउटपुट में हमें मिला I1 इनपुट। अब इसको हम यहां पर वेरीफाई करेंगे। S1 की वैल्यू 0, S1 की वैल्यू 0 और S0 की वैल्यू 1, दिस इज 1। क्लास अगेन जैसे ही सिलेक्ट लाइन 1 है, आउटपुट पे हमें लोअर वाली इनपुट मिलेगी, डेट इज I1। अगेन यहां पर सिलेक्ट लाइन 1 है, तो आउटपुट में हमें लोअर वाली इनपुट मिलेगी, डेट इज I3। अगेन इस मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट लाइन 0 है, तो उस केस में आउटपुट में हमें अपर वाली इनपुट मिलेगी, डेट इज I1। तो सिंपली 4x1 में 0 1 में हमें मिला I1, और इस सर्किट में भी जब सिलेक्ट लाइन में हमने 0 1 कॉम्बिनेशन अप्लाई किया, तो उस केस में आउटपुट में हमें मिला I1। अगेन जैसे ही हमने सेलेक्ट लाइन में 1 0 अप्लाई किया, आउटपुट में हमें मिला I2 इनपुट। अब इसको हम वेरीफाई इस सर्किट में करेंगे। S1 की वैल्यू 1 एंड S0 की वैल्यू 0। सिलेक्ट लाइन 0, तो आउटपुट में हमें अपर वाली इनपुट मिलेगी, डेट इज I0। अगेन यहां पर सिलेक्ट लाइन 0, तो आउटपुट में हमें अपर वाली इनपुट मिलेगी, डेट इज I2। अब यहां पर सिलेक्ट लाइन 1 है, तो उस केस में आउटपुट में हमें लोअर वाली इनपुट मिलेगी, डेट इज I2। तो सिंपली Y इक्वल टू I2। तो सेम जैसे ही सिलेक्ट लाइन 1 0 अप्लाई किया, तो आउटपुट में हमें I2 इनपुट मिली। और इस सर्किट में जैसे ही सिलेक्ट लाइन S1 में मैंने 1 अप्लाई किया और S0 में 0 अप्लाई किया, तो आउटपुट में हमें क्या मिला, I2। अब हम लास्ट केस डिस्कस करेंगे। सेलेक्ट लाइंस में हमने 1 1 अप्लाई किया, आउटपुट में हमें मिला I3। अब इसको हम यहां पर वेरीफाई करेंगे। S1 की वैल्यू 1, S0 की वैल्यू 1। जैसे ही सिलेक्ट लाइन 0, सॉरी, जैसे ही सिलेक्ट लाइन 1, आउटपुट में हमें लोअर वाली इनपुट मिलेगी, डेट इज I1। अगेन यहां पर सिलेक्ट लाइन 1, आउटपुट में हमें लोअर वाली इनपुट मिलेगी, डेट इज I3। यहां पर सिलेक्ट लाइन 1, तो आउटपुट में हमें लोअर वाली इनपुट मिलेगी, डेट इज I3। तो सिंपली Y इज इक्वल टू I3, और ये दोनों सेम है। तो सिंपली यहां पर हमने 4x1 मल्टीप्लेक्सर डिजाइन किया विद द हेल्प ऑफ 3 2x1 मल्टीप्लेक्सर। क्लास यहां पर हम 8x1 मल्टीप्लेक्सर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ 2x1 मल्टीप्लेक्सर। This is 8x1 multiplexer. In the case of 8x1 multiplexer, there are 8 inputs, I0, I1, I2, I3, I4, I5, I6 and I7. How many select line are required? M equal to 2 to power n. यहाँ पर M है number of inputs, और जो n है that is number of select lines. तो number of inputs are 8, तो M equal to 8 equal to 2 to power n. 8 can be written as a 2 to power 3 equal to 2 to power n. बेस सेम है, जब आप पावर कंपेयर करोगे तो n इक्वल टू 3। तो हाउ मेनी सिलेक्ट लाइंस आर रिक्वायर्ड, 3।
S2, S1 and S0. This is a truth table. For 3 select lines, how many possible combination? 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. जैसे ही आप select lines में 0, 0, 0 अप्लाई करोगे, आउटपुट में हमें I0 इनपुट मिलेगी. For 0, 0, 1 कॉम्बिनेशन, आउटपुट में हमें I1 इनपुट मिलेगी. For 0, 1, 0 कॉम्बिनेशन, आउटपुट में हमें I2 इनपुट मिलेगी. इन सेम वे जैसे ही हम सिलेक्ट लाइंस में 111 अप्लाई करेंगे, आउटपुट में हमें I7 इनपुट मिलेगी. And this is a 2x1 multiplexer. There are 2 inputs and single select line. There are 2 values for single select lines, 0 and 1. जैसे ही S की वैल्यू 0 है तो आउटपुट में हमें अपर वाली इनपुट मिलेगी, डेट इज I0. और जैसे ही S की वैल्यू 1 है तो आउटपुट में हमें लोअर वाली इनपुट मिलेगी, डेट इज I1. अब हमने 8x1 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 2x1. हाउ मेनी 2x1 आर रिक्वायर? तो यू हैव टू डिवाइड दिस 8 by 2. Quotient is 4. Again you have to divide this 4 by 2. Quotient is 2. Again you have to divide this 2 by 2. Quotient is 1. जैसे ही 1 आएगा स्टेप रोकना है. तो हाउ मेनी 2x1 मल्टीप्लेक्सर आर रिक्वायर? 4 plus 2 6 plus 1 7. तो यहां पर मैंने 7 2x1 मल्टीप्लेक्सर बनाए हैं. अब यहां पर हम अप्रोच रखते हैं लेफ्ट टू राइट. पहले 4 आया तो 4 मैंने 2x1 मल्टीप्लेक्सर पैरेलल में लगाए हैं जिसकी सिंगल सेलेक्ट लाइन होगी. आगे 2 आया तो 2 मैंने 2x1 मल्टीप्लेक्सर पैरेलल में लगाए हैं. लास्ट में आया 1 तो सिंपली 1 2x1 मल्टीप्लेक्सर लगाया है. अब क्लास इनपुट्स क्या होंगी? हमने सिंपली 8x1 बनाना है विद द हेल्प ऑफ 2x1. 8x1 की इनपुट्स हैं 8 फ्रॉम I0 टू I7. तो इसकी इनपुट्स क्या होंगी? I0, I1. फॉर दिस मल्टीप्लेक्सर I2 एंड I3. For this multiplexer I4 and I5. And for this multiplexer I6 and I7. अब नेक्स्ट हमको सिलेक्ट लाइंस लिखना है. ये सारे के सारे 2x1 मल्टीप्लेक्सर हैं तो सिंपली एक सिलेक्ट लाइन होगी. अब इस सिलेक्ट लाइंस का ऑर्डर कैसे लिखना है? यहां पर है S2 S1 S0. यहां पर जब हम सिलेक्ट लाइंस लिखेंगे तो हमने ऑर्डर को चेंज कर देना है. मैंने पहले बताया है. जैसे यहां पर पहले S0 आया था, अब यहां पर आएगा S2. इन दोनों मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट लाइंस होंगी S1 एंड लास्ट इन 4 मल्टीप्लेक्सर की सिलेक्ट लाइंस होंगी S0. यहां पर ऑर्डर था S2 S1 S0. अब आपको यहां पर ऑर्डर चेंज कर देना है. यहां पर पहले S0 आया था, फिर S1 फिर S2. यहां पर पहले S2 आएगा, फिर S1 आएगा, फिर S0 आएगा. अब क्लास में एक केस को वेरीफाई करूंगा, लास्ट वाले को. यहां पर सिंपली 8x1 मल्टीप्लेक्सर को हमने बनाया है बाय यूजिंग 7 2x1 मल्टीप्लेक्सर से. तो सिंपली जो 8x1 मल्टीप्लेक्सर का ट्रुथ टेबल होगा, इस ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करेगा ये सर्किट. तो मैं लास्ट जैसे इस केस में S2 S1 और S0 में अगर मैं 111 अप्लाई करता हूं, आउटपुट में मुझे I7 इनपुट मिलेगी. अब इसको हम यहां पर वेरीफाई करेंगे. S2 की वैल्यू 1, S1 की वैल्यू 1, S0 की वैल्यू 1. क्लास जब सिलेक्ट लाइन 1 होगी तो आउटपुट में हमें लोअर वाली इनपुट मिलेगी, डेट इज I1. अगेन यहां सिलेक्ट लाइन 1 है तो आउटपुट में हमें लोअर वाली इनपुट मिलेगी I3. यहां सिलेक्ट लाइन 1 है, आउटपुट में हमें लोअर वाली इनपुट मिलेगी I5. सिलेक्ट लाइन 1 है तो आउटपुट में हमें लोअर वाली इनपुट मिलेगी I7. अगेन अब यहां पर सिलेक्ट लाइन 1 है, आउटपुट में लोअर वाली इनपुट डेट इज I3. अगेन यहां भी सिलेक्ट लाइन 1 है तो आउटपुट में लोअर वाली इनपुट डेट इज I7. अब यहां पर सिलेक्ट लाइन 1 है तो आउटपुट में हमें लोअर वाली इनपुट मिलेगी, डेट इज I7. तो सिंपली मैंने वेरीफाई कर दिया. यहां पर 111 कॉम्बिनेशन के लिए I7 मिला और इस सर्किट में भी
अगर मैं S2 S1 और S0 में 111 अप्लाई करता हूं तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा? I7 इनपुट। सेम आप बाकी के केस भी वेरीफाई कर सकते हो।